Hey guys, welcome to Mona classes. Today we will cover the topic FIFO method. FIFO known as generally first in first out method. FIFO first in first out. It means पहले जो मटेरियल आपके स्टोर में आया है पहले उसको हम इशू करेंगे और जो बाद में मटेरियल आया है उसको हम बाद में इशू करते हैं. So let's see this question here. Here receipts are given and issues are given. रिसिप्ट के हमें जितने भी क्वांटिटीज़ इशू की हैं उसका हमें रेट प्राइस भी गिवन है एंड इशू जो हमने किया है मटेरियल उसके हमें रेट नहीं गिवन है. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड यही है आपका कि आपको इसके रेट पता करने होते हैं, कितने रेट पर आपने ये मटेरियल इशू करना है. सी इन दिस क्वेश्चन दिसंबर मंथ का आपको इंफॉर्मेशन गिवन है. दिसंबर 3 को आपने रिसिप्ट किया है 200 kg का. Let's solve this question. This is the format of store ledger account. We are preparing here first in first out FIFO method store ledger account for the month of December. As in question we have given for the month of December. Here receipts, issues and balances will be shown. Quantity, rate, amount, quantity, rate and amount, quantity, rate and amount. In this way the format will proceed. Let's start this question from the December 3. Here we have received the quantity of 200 kg. This is costing for 20 rupees per kg. So amount here will be 200 into 20, that is 4000 rupees. Next, on the same date, as we have not issued any material, you can see here in the question on the same date, that is December 3, we have not issued any material, so this will remain blank. Now coming to the balances, on December 3 we have total 200 quantity material of 20 rupees, that is 4000 rupees. Next, on December 4 we have not received any of the material and issue December 4, that is 100 kg. We'll see here on December 4 we have not received any of the material, that means it will remain blank, and we have issued 100 kg material. In this question no rate has been given for the issue. So what rate we will apply here? As we know we have material of rupees 20 only, so we will issue this at rupees 20 only. So it will cost of amount rupees 100 into 20, that is your 2000. Now we have balance left. 200 में से हमने 100 kg का मटेरियल इशू कर दिया है, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ 100 kg का मटेरियल बचा हुआ है. Here amount will be 100 into 20, that is 2000 rupees. Next, on December 5, 6, 7, 8 and 9 there is no entry has been written over here, so next entry is for December 10. So 50 kg material will be issued at the amount of rupees 20. क्योंकि हमारे पास स्टॉक में सिर्फ 20 रुपीज़ वाला ही मटेरियल है, कोई और अभी रेट का अवेलेबल नहीं है, सो अभी हम सिर्फ 20 रुपीज़ पर ही इशू करेंगे. 50 इंटू 20, दैट इज़ 1000. नेक्स्ट द बैलेंस रिमेन. 100 में से 50 आपने इशू कर दिया, तो 50 आपके पास बचा हुआ है स्टॉक में और एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 20. See next, on December 18, next we have the entry for December 18. On December 18 we have received the material of 300 kg. So we will write it here in the entries of receipts, not in the issues. इसको हम रिसिप्ट्स के कॉलम में लिखेंगे, इशू के कॉलम में नहीं लिखेंगे. 300 of rupees 18. 300 into 18, that is 5400. Next,
On this date we have not issued any of the material, so it will remain blank. Now the balance will be written here as, देखिए 50 किलो का मटेरियल 20 रुपये के हिसाब से हमारे पास ऑलरेडी है स्टॉक में, और अभी हमारे पास 300 × 18 का नया मटेरियल रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, 50 + 300 350 नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, 50 का पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फीफो मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसलिए जो मटेरियल पहले आया है उसको हम पहले लिखेंगे, और जो मटेरियल बाद में आया है जो कि आपका 300 किलो का 18 रुपये के हिसाब से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। Yes, the balance will be written here in this way. इसी वे में आपको बैलेंस लिखना होता है। 50 जो कि आपका एग्जिस्टिंग है 20 रुपये के हिसाब से, और अभी जो नया मटेरियल 300 kg का आपके पास आया है उसको बाद में लिखना है। 300 × 18 दैट इज 5400। नेक्स्ट एंट्री, ऑन दिसंबर 20 आपने मटेरियल इशू किया है। 300 kg का मटेरियल इशू करना है। सो ऑन दिस डेट नो एंट्री ऑन रिसिप्ट्स, बट इशू किया है 300 kg का मटेरियल। येस, हेयर द क्वेश्चन स्टार्ट यू कैन से, बिकॉज क्योंकि हमें यहाँ पर फीफो मेथड के अकॉर्डिंग ये देखना है कि ये 300 kg का मटेरियल किस रेट पर इशू होगा, 20 पर करें या 18 पर करें। येस, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग टू लिसन हेयर। 50 किलो का मटेरियल जो कि 20 रुपये में सबसे पहले फैक्ट्री में आया है या स्टोर में आया है, पहले हम उसी को इशू करेंगे। तो ये जो 300 है डायरेक्टली हम एक साथ इशू नहीं करेंगे, पहले 50 kg का मटेरियल जाएगा आपको यहाँ पर जो कि 20 के हिसाब से। नेक्स्ट 300 में से 250 बचे जो कि 18 रुपये के हिसाब से इशू होगा। 250 × 18 that will cost 4500। एक बार फिर से देखिए, 300 kg का मटेरियल हमने इशू करना है, 50 kg का हमें पहले इशू करना है क्योंकि ये पहले फैक्ट्री में और स्टोर में आया है। तो इसलिए 50 × 20 ये पहले कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें 300 kg का टोटल करना है। 50 यहाँ से लिया, अब हमारे पास 250 मटेरियल और इशू करना है जो कि हम 300 में से लेंगे, इसीलिए 300 में से 250 kg × 18 रुपीज़ के हिसाब से 5500 का हुआ। नेक्स्ट, अभी हमारे पास बैलेंस क्या बचा हुआ है, क्योंकि ये 50 वाला तो ख़त्म हो चुका है, इशू कर दिया हमने। अब इस 300 में से 250 जो इशू किया, रिमेनिंग 50 बैलेंस एज ₹18, इट विल कॉस्ट 900 रुपीज़। नेक्स्ट, ऑन December 28, on December 28 we have received material of 50 kg, 50 kg of 15 rupees, that will cost 50 × 15 that is 750 rupees. Now on this date no material has been issued, so it will remain blank and balance left as 50 existing है हमारे पास, 50 × 18 that is 900, और 50 new material which has been received on December 28 that is 50 × 15 that is 750. You can write here as total also, and you can write here in this way also, 50 × 18 and 50 × 15. Okay guys, next entry on December 30. On December 30 we have issued material of 100 kg. Sorry, 100 kg. No material has been received on this date, so it will remain blank. 100 kg का मटेरियल आपने इशू करना है। अब ये 100 जो आपने इशू किया है वो कैसे करेंगे, 50
इंटू 18 ये वाला पहले जाएगा एंड देन 50 इंटू 15 देन ये वाला जाएगा। तो इसीलिए टोटल 100 कैसे बनेगा, 50 kg का आपका बनेगा पहले 18 रुपीज़ के हिसाब से, देन 50 15 के हिसाब से, इन दोनों का टोटल, तब आपका 100 को इशू करना है। यू कैन राइट हियर इन दिस वे, 18 into 50 that is 900 and 15 into 50 750. So no material has been remained in the factory or store. स्टोर में अब कोई भी बैलेंस नहीं बचा है क्योंकि सारा का सारा मटेरियल आपने इशू कर दिया है। ओके गाइज, नेक्स्ट यू कैन राइट हियर एज टोटल 550 kg material has been received and total issues has been of 550.